imagine that you are in school and आपकी टीचर आपको कहती है that from today onwards आप किसी भी और लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो with your friends and colleagues. You cannot talk in languages like Hindi, Bengali, Tamil, any of your regional languages. And your school also does not celebrate the festivals that you really want to celebrate, such as Diwali, Holi, Janmashtami, and any other festival that promotes your culture or religion. And आपको ये बहुत ज़्यादा unfair लगता है. You feel that why such restrictions are being put to you in a democratic country like India. So don't worry, the Indian Constitution has got your back. Hi guys, I am Shivika Mehra and in today's video, I will be discussing the fifth fundamental right which allows you to speak the language of your choice and to promote the culture that you follow, and you can also open educational institutions to preserve and promote your culture, and this is guaranteed to you under Article 29 and 30 of the Indian Constitution. So आज की वीडियो में हम समझेंगे the true meaning of both these articles with very relatable and real life examples. So let's get started with the video. Understanding the true meaning of cultural and educational rights. So basically ये rights protect करते हैं the culture, language and education of the minority communities in India. So as all of us know that India is a very secular, very diverse country जहाँ पे बहुत languages बोली जाती हैं, बहुत cultures follow करे जाते हैं, बहुत different लोगों के beliefs and religions हैं, वहाँ पे to have this right is very 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 important so that ये right preserve कर सके the diversity of India. Because अगर हमारे पास ये right नहीं होगा then one particular language, culture, religion might dominate the other and it will completely defeat the purpose of India being a diverse and a secular state. So we need this right, which is cultural and educational rights, to promote and preserve the diversity of our country India, जिससे जितने भी लोग हैं जो different cultures and languages follow करते हैं वो साथ together coexist कर सकें in the country India and किसी के भी साथ किसी भी तरीके का कोई भी unfair treatment ना हो. Now let's understand कि कौन से articles में of the Indian Constitution बात करी गई है about this fundamental right. So basically cultural and educational rights is the fifth fundamental right which is enshrined in our Constitution under Articles 29 and 30. So basically 29 and 30 जो articles है उसमें बात करी गई है about cultural and educational rights. Now I will be explaining both these articles in a very simple manner with very relatable and real life examples. Let's get started by understanding Article 29 of the Indian Constitution जो basically guarantee करता है these two things. The first one is right to conserve language, script and culture. इसका बहुत simple मतलब ये है कि आज कोई भी set of people जो एक different distinct language बोलते हैं, एक उनकी different distinct script है and उनका एक belief altogether एक different culture पे है, उनके पास complete right है to protect that language, script and culture. So basically any citizen of the country India who is residing in any part of the country has complete freedom and right to conserve their language, script and culture because that is a fundamental right which is guaranteed to them under Article 29 of the Indian Constitution. And the next point is no discrimination in admission. इसका बहुत simple terms में मतलब ये है कि किसी भी individual को किसी भी government school में अगर admission लेनी है तो उनको कोई भी रोक नहीं सकता है from getting admitted in a government school or a state aided school, and there can be no discrimination on the grounds of religion, race, language, script or culture. So basically इसका बहुत simple मतलब ये है कि अगर आज कोई individual admission लेना चाहता है in a government school or a state aided school, so उस इंसान को admission deny नहीं हो सकती है on the grounds of language, script, culture, religion or caste.
एंड अगर इन दोनों राइट्स में से कोई भी राइट वायलेट होता है, सो दैट इज क्लियर कट वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट विच इज आर्टिकल 29 of the Indian Constitution. Now let's quickly understand Article 29 with the help of an example. So अगर आज कोई एक बंगाली स्पीकिंग स्टूडेंट किसी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है जो महाराष्ट्र में है, तो उस स्टूडेंट को एडमिशन डिनाई नहीं हो सकती ऑन द ग्राउंड्स कि उसको मराठी बोलनी नहीं आती है एंड ही बिलोंग्स टू अ डिफरेंट लिंग्विस्टिक कम्युनिटी. एंड अगर इन दो ग्राउंड्स में उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को एडमिशन डिनाई होती है, देन दैट इज क्लियर कट वायलेशन ऑफ Article 29 of the Indian Constitution. Now let's discuss Article 30 of the Indian Constitution that basically discusses about right of the minorities to establish and administer the educational institutions. इसका बहुत सिंपल मतलब ये है कि all minorities have the right to establish their own education institutions. अगर कोई भी आज एक minority community है जो एक particular language and culture में believe करती है, तो वो उस culture and language को, उस script को basically प्रिजर्व कर सकती है बाय वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंड रनिंग देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे बेसिकली वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, अपनी लैंग्वेज में ही कोर्स वर्क कंडक्ट करेंगी एंड दैट विल बी अ वे जिससे वो अपने कल्चर एंड लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट को प्रिजर्व कर पाएंगे. एंड द नेक्स्ट वन इज दैट व्हाइल प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड द गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट. इसका बहुत सिंपल मतलब यह है कि स्टेट जो है, जो गवर्नमेंट है, अगर वो आज किसी एक पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, जो एक पर्टिकुलर कल्चर एंड लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, अगर उसको एक एड प्रोवाइड करती है तो वो डेफिनेटली कर सकती है. बट जब वो एक लैंग्वेज को, एक कल्चर को प्रमोट करने के लिए एड प्रोवाइड कर रही है, प्रिजर्व करने के लिए एड प्रोवाइड कर रही है, तो ऑन दी अदर हैंड वो दूसरे लैंग्वेज या कल्चर को एड या सपोर्ट प्रोवाइड करने से डिनाई नहीं कर सकती. वहाँ पे गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है. द गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट कि मैं एक कल्चर या एक लैंग्वेज की प्रेजर्वेशन के लिए फंड्स प्रोवाइड करूँगी बट सेकेंड के लिए नहीं. सो अगर वो हो रहा है, अगर वो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, देन दैट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 30 of the Indian Constitution, because जब भी गवर्नमेंट स्टेट फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है, सो इट शुड बी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड इन सच अ मैनर कि सारे कल्चर, सारी लैंग्वेजेस को इक्वल फाइनेंशियल एड प्रोवाइड हो एंड किसी भी कल्चर या लैंग्वेज के जितने भी लोग हैं उनको ये नहीं लगे कि हमारे साथ किसी भी तरीके की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है. सो दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ आर्टिकल 30 of the Indian Constitution. Now let's take an example of this article which is Article 30. तो अगर आज कोई एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो अपना एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल ओपन करना चाहती है, so they can definitely do that. Plus they can always give preference to Christian students जो उस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं और to Christian teachers जो उस कल्चर एंड लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग रखती है, and that is completely legal under Article 30 of the Indian Constitution. सो बेसिकली जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने के लिए एक डिफरेंट, एक सेपरेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डेफिनेटली ओपन कर सकती है, बिकॉज दैट इज अ राइट विच इज गारंटीड टू देम अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल मैनर कि बेसिकली जो हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, व्हाई आर दे सो इम्पॉर्टेंट, उनकी हमारे आजकल के टाइम में एग्जैक्टली क्या अहमियत है. सो बेसिकली दीज rights protect your identity, ensure fair education and preserve the diversity of our country India. इन तीनों पॉइंट्स का सिर्फ एक क्रक्स में बहुत सिंपल मतलब ये है कि जो आप एज एन इंडिविजुअल हो, आप जो भी कल्चर या लैंग्वेज या स्क्रिप्ट फॉलो करते हो वो आपके पास करने का पूरा अधिकार है, एंड यू कैन ऑल्सो प्रमोट दैट एंड प्रिजर्व दैट बाय इंश्योरिंग कि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन करो जहाँ पे आप उस पर्टिकुलर कल्चर एंड लैंग्वेज को प्रमोट करो, जिससे इन अ वे वो कल्चर एंड जो वो लैंग्वेज है, जो वो स्क्रिप्ट है, वो प्रिजर्व होगी एंड एट द एंड ऑफ द डे उससे आप अपनी आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी मेंटेन कर पाओगे, एंड यू डू नॉट हैव टू स्टॉप
फॉलोइंग योर लैंग्वेज एंड कल्चर जस्ट बिकॉज आपको कोई और इंडिविजुअल गवर्नमेंट या स्टेट बोल रही है, बिकॉज देन अगेन दैट इज वायलेशन ऑफ योर फिफ्थ फंडामेंटल राइट। एंड लास्टली ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो इससे बेसिकली जो हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी है, जो हमारी कंट्री डाइवर्स है, जहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स एंड बिलीव्स को फॉलो किया जाता है, सो बेसिकली वो डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व होती है। सो बेसिकली आज इंडिया का जो बेस है, जो इंडिया की फाउंडेशन है, दैट इज इट्स डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी इन डाइवर्सिटी। सो बेसिकली जितनी भी हमारी कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स हैं उनको प्रिजर्व करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिकली जो हमारी फाउंडेशन है ऑफ द कंट्री इंडिया, विच इज दैट ऑल ऑफ अस आर सो डिफरेंट येट वी आर सो यूनाइटेड। वो उस चीज़ को, उस आइडिया को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। एंड दैट इज वाई द फिफ्थ फंडामेंटल राइट इज सो क्रूशियल। I really hope कि आपको समझ आया होगा the true meaning of Article 29 and 30 of the Indian Constitution. So एक quick recap ले लेते हैं of both these articles. So basically Article 29 protect करता है language, script and culture and it benefits all the citizens, especially the minorities in our country India. And Article 30 basically protect करता है and right देता है minorities को to run their education institutions. एंड ये जो राइट है ये बेसिकली बेनिफिट करता है सारी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को। आई रियली होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। आपको समझ आया होगा द ट्रू मीनिंग ऑफ आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई रियली ट्राइड कि मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में विद वेरी रिलेटेबल एग्जाम्पल्स आपको ये दोनों आर्टिकल समझा सकूँ। If you haven't seen my other videos on other fundamental rights, please go and watch them. You will find the link in the description down below. Also, I come up with legal videos in which I explain law topics in a very simple manner. तो अगर आपको किसी भी legal topic में, कोई भी law topic में कोई भी doubt है, please let me know in the comments down below. I will make a separate video जिसमें मैं वो law topic, वो topic जिसमें आपको basically confusion है, वो बहुत easy language में explain करने की पूरी कोशिश करूंगी। Please like, share, comment and subscribe and I'll see you guys in my upcoming videos. Till then, please take care of yourselves. Bye bye.